عمران اور اس کے ساتھی ایک کافی طویل و عریض کمرے کے فرش پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے خالی تھا۔ کمرے میں کوئی روشن دان یا کھڑکی نہ تھی، صرف ایک دروازہ تھا جہاں سے انہیں اندر لا کر فرش پر پھینک دیا گیا تھا۔ کمرے کی چھت خاصی اونچی تھی اور چھت کے عین درمیان ایک چوکور بکس نما خانے میں سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور انہیں یوں ہی فرش پر پڑے ہوئے 10 منٹ سے زیادہ گزر گئے تھے۔ انہیں اندر پھینکنے کے بعد کوئی شخص دوبارہ اندر نہ آیا تھا اور عمران انتظار میں تھا کہ کوئی اندر آئے اور ایک بار انہیں اس بے بسی سے نجات دلائے۔ تب ہی وہ کوئی اور منصوبہ بنا سکتا ہے۔ سیلینیم فائر جسے انہیں اس طرح ہیلی کاپٹر میں ہی مفلوج کر دیا گیا تھا، اس کے لیے بالکل نئی چیز تھی، اس لیے وہ اس کا توڑ بھی نہ کر سکا تھا۔ ابھی وہ یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ان کی طرف بڑھے۔ انہوں نے غور سے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا اور پھر ان میں سے ایک نے عمران کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے نے جھک کر عمران کو اٹھایا اور پھر کاندھے پر لاد کر تیزی سے دروازے کی طرف مڑتے چلے گئے۔ عمران کے باقی ساتھی سوکت پڑے عمران کو اس طرح باہر جاتے دیکھتے رہے۔ وہ بھی عمران کی طرح ہی بے بس تھے، جو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف ہونے کے باوجود انہی کی طرح بے بسی کے عالم میں آٹے کے ذرے کی طرح کندھے پر لدا ہوا جا رہا تھا۔ عمران کو اٹھائے وہ کمرے سے نکلے اور پھر مختلف راہداریوں سے مڑنے کے بعد ایک دروازے پر رک گئے۔ دروازے کے اوپر سرخ رنگ کا بلب مسلسل جل بجھ رہا تھا۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی بلب یکلخت سبز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا اور وہ آدمی جس نے عمران کو اٹھایا ہوا تھا تیزی سے اندر داخل ہوا، جبکہ دوسرا وہیں باہر ہی رک گیا تھا۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس کے بالکل آخر میں ایک بڑی میز تھی۔ میز کی دونوں سائڈوں پر 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میز کے پیچھے ایک بڑی کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر مارشل زاتورے بیٹھا ہوا تھا۔ اطراف والی کرسیوں پر 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ میز کے بالکل سامنے ذرا فاصلے پر ایک مخصوص ساخت کی لوہے کی ایک کرسی تھی جس کے ساتھ تاروں کے گچھے سے لٹک رہے تھے۔ عمران کو لے آنے والے نے اسے اس کرسی پر بٹھا دیا اور پھر اس نے کرسی کے پائے کے اندرونی طرف کو پیر سے دبا دیا۔ دوسرے لمحے کھٹک کی تیز آواز سے لوہے کے راڈ کرسی کے بازوؤں کے درمیان پھیلتے چلے گئے اور عمران کا جسم اس کرسی میں جکڑا گیا۔ اب تم جا سکتے ہو، سائیڈ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے اٹھ کر عمران کو لے آنے والے مسلح فرد سے کہا اور وہ باقاعدہ سلوٹ مار کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد کمرے کا دروازہ بند ہوا اور وہی ادھیڑ عمر آدمی اٹھا اور کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کونے میں کھڑی ہوئی ایک سٹینڈ نما مشین کھینچی اور اسے عمران کی کرسی کی پشت کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے کرسی کے ساتھ لٹکے ہوئے تاروں کے مختلف گچھوں کو اس مشین کے ساتھ منسلک کرنا شروع کر دیا اور پھر اس نے مشین کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی مشین میں ہلکی سی گھرر گھرر کی آوازیں پیدا ہوئیں اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں زندگی کی لہریں سی دوڑتی چلی گئی ہوں اور دوسرے لمحے اس کے جسم نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ اب عمران کا جسم معمول کے مطابق حرکت کر رہا تھا۔ مشین چلنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ لوگ بے حد ہمدرد واقع ہوئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے پہلی بار زبان کھولی۔ مشین ہٹا دو قوم الوف، اب یہ بولنے پر قادر ہو گیا ہے۔ مارشل زاتورے نے بڑے سنجیدہ لہجے میں اس ادھیڑ عمر آدمی سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ تیزی سے مشین کی طرف بڑھا۔ اس نے اسے بند کیا اور پھر پھرتی سے تاریں علیحدہ کر کے وہ مشین کو گھسیٹتا ہوا اور دوبارہ کونے کی طرف لے گیا۔ تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف ہو؟ اچانک مارشل زاتورے نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ چیف؟ ارے مجھ پر اتنا ظلم نہ کرو۔ اگر اس پردہ نشین نے سن لیا تو میرا حشر عبرتناک ہوگا۔ نہ بھائی نہ، میں ایسی ہمدردی سے باز آیا، عمران نے چونک کر بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پردہ نشین؟ کیا مطلب؟ کیا وہ عورت ہے؟ مارشل زاتورے نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بہت خوب، واقعی پردہ نشین تو عورتیں ہوتی ہیں۔ اب جب بھی اس سے ملاقات کا موقع ملا میں اسے ضرور کہوں گا کہ وہ پردے سے باہر آ جائے، ورنہ اس کی مردانگی مشکوک ہو جائے گی۔
इमरान की ज़बान कैंची की तरह चल रही थी। देखो, तुम केजीबी के चीफ मार्शल जातूरे के सामने बैठे हो, इसलिए फजूल बातों से गुरेज करो। जो पूछा जाए उसका महज़ब अंदाज में जवाब दो। कुर्सी पर बैठे हुए एक नौजवान ने इमरान को झाड़ते हुए कहा। मार्शल जातूरे? अच्छा, तो मार्शल जातूरे ये है। अस्सलामुअलैकुम किबला मार्शल साहब, आपके मिजाज कैसे हैं? पिछले दिनों मैंने सुना था कि आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज थी, कुछ दिमागी खलल बताया गया था। अब आपके दुश्मनों की तबीयत कैसी है? इमरान ने बड़े महज़ब अंदाज में हाल चाल पूछते हुए कहा। शट अप, तुम्हारी ज़बान ज़रूरत से ज़्यादा चलती है। मेरे सवालों का जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी बोटी बोटी अलहदा कर दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मार्शल जातूरे ने गुस्से से बिगड़े हुए लहजे में कहा। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया था। अल्लाह ताला ने ज़बान चलने के लिए ही दी है, और देखिए अल्लाह की कुदरत, ज़बान के पाँव नहीं हैं, पहिए नहीं हैं, गियर नहीं बदले जाते, एक्सीलेटर नहीं दबाना पड़ता, पेट्रोल खर्च नहीं होता, मॉडल नहीं बदलते, फिर भी चलती रहती है। और हमारे यहाँ एक शायर है, भगत कबीर, वो कहता है चलने का नाम गाड़ी है। इसलिए आप ज़बान को भी गाड़ी कह सकते हैं। इमरान की ज़बान जब चल पड़े तो जाहिर है उसे कौन रोक सकता है। तुम ज़रूरत से ज़्यादा बकवास करने के आदी हो, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुनते रहें। कोमोलूफ, मार्शल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। यस बॉस, उसी उधेड़ उम्र आदमी ने मोतबाना लहजे में कहा। खंजर से इसकी एक आंख निकाल दो। मार्शल जातूरे ने कोमोलूफ से मुखातिब होकर हुक्म देते हुए कहा, और कोमोलूफ ने इंतहाई फुर्ती से खंजर निकाल दिया। ठहरो, अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, अचानक इमरान ने गुराते हुए कहा। उसका लहजा और अंदाज यकलख्त बदल गया था कि कोमोलूफ खुद ब खुद ठटक कर रुक गया। मार्शल जातूरे और उसके दूसरे साथी भी चौंक पड़े। अगर तुम संजीदगी से हमारे सवालों के जवाब दे दो तो मैं वादा करता हूँ, मार्शल जातूरे ने कहना शुरू किया। किसी वादे की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे वादे अक्सर सुनता रहता हूँ। सुनो मार्शल, अगर हेलीकॉप्टर में मुझे ज़रा भी शुबा हो जाता कि तुम केजीबी के चीफ मार्शल जातूरे हो तो यकीन जानो कि उस वक्त सूरत हाल कुछ और होती। बहरहाल मैं तुम्हारे सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ और बिल्कुल दुरुस्त जवाब दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे साथियों को यही बुलवा लो और उनकी मौजूदा हालत दुरुस्त कर दो। इमरान ने उसी तरह इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हम उन सब को यहीं बुला लें, लेकिन इन सब को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है? हम उसी कमरे में उन पर सेलेनियम फायर के असरात ख़त्म कर देते हैं, मार्शल जातूरे ने कहा। चलो ऐसा कर लो, लेकिन मैं जो बयान दूंगा उनके सामने दूंगा। मैं अपने ज़मीर में कोई खलिश लेकर नहीं मरना चाहता। इमरान का लहजा पहले से कहीं ज़्यादा ठोस था। और अगर हम तुम्हारी शर्त ना माने तो? मार्शल जातूरे ने अचानक बात बदलते हुए कहा। तो फिर तुम्हारा जो चीज चाहे कर लो। तुम एक आंख की बात कर रहे हो, तुम हम सब की बोटियां उड़ा दो, तब भी तुम एक लफ्ज़ अपने मतलब का नहीं सुन सकते। इमरान ने इंतहाई पुर एतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। कमरे में चंद लम्हे खामोशी तारी रही। मार्शल जातूरे कुछ सोच रहा था, फिर उसने यूं कंधे झटके जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गया हो। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मार्शल जातूरे ने कहा, और फिर उसने अपने एक साथी से मुखातिब होकर कहा। संजूफ, तुम उसके साथियों को ठीक करके यहाँ ले आने का बंदोबस्त करो, लेकिन ख्याल रखना अगर उनमें से कोई गलत हरकत करना चाहे तो बेशक गोली मार देना, मार्शल जातूरे ने सख्त लहजे में कहा। बेहतर बॉस, एक नौजवान ने तेजी से कुर्सी से उठते हुए जवाब दिया और फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसके जाने के बाद मार्शल जातूरे ने अपने सामने पड़ी हुई मोटी सी फाइल उठाई और उसके सफ़ात खोलकर उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो उन्हें पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। वो कभी चौंक कर गौर से सामने कुर्सी पर बैठे हुए इमरान को देखता और फिर नजरें झुकाकर फाइल पढ़ना शुरू कर देता। इमरान उसके अंदाजे से ही समझ गया था कि इस वक्त मार्शल जातूरे के सामने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की फाइल है।
तकरीबन 15 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और इमरान के साथियों को इमरान की तर्ज की कुर्सियों पर जकड़े हुए कुर्सियां धकेलते कुछ लोग अंदर दाखिल हुए और उन्होंने कुर्सियां इमरान की साइड में लगा दी और फिर वो तेज़ी से वापस मुड़कर चले गए। आखिर में संजूफ अंदर दाखिल हुआ और उसने आगे बढ़कर अपनी कुर्सी संभाल ली। हुक्म की तामील हो गई है बॉस, संजूफ ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। है कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मार्शल जातूरे ने फाइल बंद करते हुए पूछा। नहीं जनाब, संजूफ ने जवाब देते हुए कहा। देखो मिस्टर, अब तुम्हारी शर्त पूरी हो गई है। अब तुम मेरे सवालात का जवाब दो और सुनो। अब अगर तुमने बकवास की या झूठ बोला तो मैं तुम सबको ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि तुम्हारी हड्डियां भी तड़पती रह जाएंगी। मार्शल जातूरे का लहजा यकदम बुलंद हो गया। इन धमकियों की ज़रूरत नहीं, तुम जो पूछना चाहते हो पूछ लो, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मार्शल जातूरे ने पूछा। असली नाम बताऊं या कोड नाम? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया। दोनों बताओ, मार्शल जातूरे ने चौंकते हुए कहा। मेरा असल नाम शिराज है और कोड नाम अली इमरान, इमरान ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या तुम कहना ये चाहते हो कि तुम असली अली इमरान नहीं हो? मार्शल जातूरे ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। सुनो मार्शल, तुमने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हमेशा हकीर और पसमानदा समझकर नज़रअंदाज किया है, जबकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ एक्स्ट्रो दुनिया का सबसे ज़हीन और काबिल इंसान है। उसने अपनी सीक्रेट सर्विस के 2 गिरोह बनाए हुए हैं, एक असल और दूसरा कोड। कदो कामत, शक्ल सूरत मिलती जुलती और ट्रेनिंग एक जैसी, जिसका नतीजा ये कि आम आदमी इन दोनों गिरोहों में पहचान नहीं कर सकता। अब हमारी मिसाल देख लो। हमारा गिरोह कोड गिरोह है, यानी नकली गिरोह। उसे हम सरकारी ज़बान में कोड गिरोह कहते हैं और असल गिरोह किसी जजीरे में घूम फिर रहा होगा, जबकि हम यहाँ फंसे हुए हैं। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। जजीरे में? क्या कह रहे हो? कौन से जजीरे में? मार्शल जातूरे उछलकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इमरान ने एक लम्हे के लिए चौंक कर उसकी तरफ देखा। दूसरे लम्हे उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने तो मुहावरतन जजीरे का लफ्ज़ कह दिया था, लेकिन मार्शल जातूरे जजीरे के लफ्ज़ पर जिस बुरी तरह उछला था उससे साफ ज़ाहिर था कि जजीरे से कोई ख़ास मतलब मुतल्लिक है। मेरे ख्याल में इस सवाल के जवाब देना ज़रूरी नहीं है, तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर तुम्हें इस जजीरे का कैसे पता चला? ये नामुमकिन है, ये टॉप सीक्रेट है। उसके मुतल्लिक तो यहाँ बैठे हुए मेरे ख़ास आदमी को भी इल्म नहीं है। तुम डाज कर रहे हो, मार्शल जातूरे ने चीख कर कहा, लेकिन उसका ये चीखना सरासर मसनूई था। उसके लहजे का खोखलापन नुमाया था। तुम जो चाहो समझ लो, असल गिरोह बहरहाल अपने काम में मसरूफ़ है और तुम देखना कि एक रोज़ वो धमाका होगा कि तुम सर पीटते रह जाओगे, इमरान ने जवाब दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगा। जजीरे पर एक मक्खी भी हमारे नोटिस में आए बगैर नहीं जा सकती। मार्शल जातूरे ने जोर से मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा। बिल्कुल ठीक है, मक्खी वाकई ना जा सकती होगी, लेकिन जहां मक्खी ना जा सकती हो वहां कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहुंच जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब तुम खुद देखो, तुम्हारी पूरी केजीबी हमारे ग्रुप के पीछे पागल हुई फिर रही है और असल ग्रुप की तरफ तुम्हारी तवज्जो जा ही नहीं सकती, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बकवास, सरासर बकवास। तुम मुझे अहमक समझते हो, बेवकूफ़ समझते हो, डैम फूल। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? है कोड ग्रुप और असल ग्रुप। मेरा नाम मार्शल जातूरे है, मैंने तुम्हारी फाइल देखी है। तुम अपने आप को अय्यार और मकार समझते हो, लेकिन मार्शल जातूरे के सामने तुम्हारी अय्यारी और मकारी नहीं चल सकती। अब मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। मार्शल जातूरे का जहन यकदम पटरी से उतर गया था। जो तुम्हारा जी चाहे करो, लेकिन हमें मारकर पछताओगे, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। मार्शल जातूरे चंद लम्हे गौर से इमरान को देखता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। अब चेहरे पर छाई हुई सख्ती नरमी में तब्दील होने लगी थी। क्या तुम कोई ऐसी पहचान बता सकते हो जिससे असल और कोड ग्रुप के फ़र्क को समझा जा सके? मार्शल जातूरे ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए नर्म लहजे में पूछा। हाँ, क्यों नहीं। फ़र्क तो वाज़ेह है, लेकिन इस वक्त जो मिंबर बिलमुकाबिल मौजूद हो, वरना
किसी तौर पर भी फ़र्क ज़ाहिर नहीं हो सकता। इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात की तहकीक करूँगा। उस वक्त तक तुम हेडक्वार्टर में कैद रहोगे। और सुनो, ये केजीबी का हेडक्वार्टर है, इसलिए यहाँ तुम हमारी मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते, मार्शल जातूरे ने कहा। और फिर उसने दोबारा एक शख्स से मुखातिब होते हुए कहा, इन्हें ऑक्टोपस रूम में कैद कर दो। मार्शल जातूरे का लहजा बेहद करख्त था। बेहतर बॉस, संजूफ ने उठकर कहा, और फिर वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। चंद लम्हों बाद वो दोबारा अंदर आया तो उसके साथ 8 मुसल्लह अफराद थे। उन्होंने उनकी कुर्सियों को बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। कुर्सियों के नीचे पहिए लगे हुए थे, इसलिए वो आसानी से चलती हुई दरवाजे से बाहर निकलती चली गई। जब उन सब के जाने के बाद दरवाज़ा बंद हुआ तो मार्शल जातूरे अपने साथियों से मुखातिब हुआ। तुम लोगों ने सारी बातें सुन ली, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? बॉस, पाकिस्तान सीक्रेट सर्वे से कुछ बाइद नहीं कि उन्होंने वाकई 2 गिरोह बनाए हुए हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें डांट दिया जा रहा हो ताकि हम उन्हें छोड़कर किसी नामालूम गिरोह की तलाश में लग जाएं, एक उधेड़ उम्र आदमी ने राय देते हुए कहा। यही बात मैंने सोची थी, इसलिए मैंने उन्हें ऑक्टोपस रूम में भिजवाया है ताकि वहाँ उनके जहनों का खुफिया तौर पर तजिया किया जाए। ये लोग फाइल के मुताबिक इंतहाई अय्यार और मकार वाक़े हुए हैं, और आज तक जदीद से जदीद मशीन भी उनके जहन का तजिया नहीं कर सकी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैं ऑक्टोपस ऑपरेशन रूम में जाता हूँ ताकि अगर कुछ मालूम हो तो फिर उसके मुताबिक लाहे अमल तैयार किया जा सके। मार्शल जातूरे ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और उसके साथ ही बाकी लोग भी उठ खड़े हुए, और फिर वो सब तो पहले वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए, जबकि मार्शल जातूरे एक और खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो बज़ाहिर दीवार का ही एक हिस्सा मालूम होता था। मार्शल जातूरे दरवाज़ा खोलकर एक राहदारी में पहुंच गया, और फिर वहां से घूमकर वो एक और कमरे में दाखिल हो गया। जैसे ही मार्शल जातूरे कमरे में दाखिल हुआ, कमरे में मौजूद एक नौजवान तेजी से उठकर खड़ा हो गया। वो नौजवान दीवार से पेवस्त एक मशीन पर झुका हुआ था। ऑक्टोपस ऑपरेशन रूम ऑन कर दो। वहाँ चंद कैदी मैंने भेजे हैं, उनका मुकम्मल तज्जिया मुझे मिल जाना चाहिए, मार्शल जातूरे ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा। मार्शल का लहजा इंतहाई तहकमाना और करख्त था। बेहतर बॉस, लेकिन जनाब को रिपोर्ट किस वक्त की जाए? नौजवान ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। हर 1 घंटे बाद मुझे तफसीली रिपोर्ट पहुंचा दी जाए। और सुनो, मुझे मुकम्मल और तफसीली तज्जिया चाहिए। दूसरी बात यह कि कैदी बेहद होशियार और ज़हीन हैं, इसलिए तज्जिया मुकम्मल तौर पर खुफिया होना चाहिए। उन्हें ज़रा बराबर भी ये शक ना हो कि उनका तज्जिया किया जा रहा है, मार्शल जातूरे ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। मैं समझ गया बॉस, आप बेफिक्र रहें, नौजवान ने सर झुकाते हुए कहा। और हाँ, मुकम्मल और तफसीली रिपोर्ट तुम खुद मेरे पास लेकर आना, किसी और के ज़रिए ना भेजना, समझे? मार्शल जातूरे ने नौजवान को हदायत करते हुए कहा। बेहतर बॉस, हुक्म की तामील होगी, आप बेफिक्र रहें, नौजवान ने जवाब दिया। और मार्शल जातूरे सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और उस कमरे से निकलकर अपने मखसूस कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। वो जल्द अज जल्द जजीरा सारिमा में असल कारखाने के इंचार्ज से बात करना चाहता था, ताकि अगर वहाँ बाकी किसी ग्रुप ने कोई मशकूक हरकत की हो तो उसका पता चलाया जा सके। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।